Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Competition Act, and in this act, I have discussed certain important provisions relating to the Competition Act. In the previous video, I have discussed certain definitions defined under Section 2 of this act, which are important for the examination point of view. Today, I will discuss with more provisions relating to the Competition Act, and these are also important for the examination point of view. So today I will discuss with firstly with section 3. If we talk about the section 3 of the Competition Act, it deals with anti-competitive agreements, प्रतिस्पर्धा रोधी करार जो संबंधित है। यदि हम प्रतिस्पर्धा रोधी करारों की बात करते हैं तो विरोधी जो प्रतिस्पर्धा के जो समझौते होते हैं जो प्रतिस्पर्धा पे कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, तो उनसे संबंधित जो है ये सेक्शन 3 धारा जो है 3 है वो इसी के बारे में बताती है। यह उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, वितरण, अधिग्रहण या वस्तुओं के नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में जो भारत या भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक प्रतिकूल असर डालते हैं या उसका कारण है या उसका कारण बन सकते हैं, तो ऐसे संगठन या व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन के लिए एक समझौते में दर्ज करने के लिए कानूनन नहीं होना चाहिए। उपरोक्त निषेध के उल्लंघन में दर्ज किए गए सभी ऐसे मामले अमान्य के होंगे, वो वाइड होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि कोई भी उद्यम या उद्यमी जो संगठन होता है या व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम है या फिर माल का उत्पादन करते हैं, प्रदाय करते हैं, वितरण, भंडारण या नियंत्रण करते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि ऐसे जो करार होते हैं यदि वो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा पर मतलब प्रतिकूल असर डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो सभी करार होंगे ना वो सबके सब वाइड होंगे, शून्य होंगे। So if we talk about Section 3 Clause 1 of the Competition Act, it provides that no enterprise, association, or the persons shall enter into any agreement in respect of the production, supply, distribution, storage, acquisition, or control of goods or provisions of the services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on the competition. If we talk about the Section 3 Clause 2 of this Competition Act, यदि हम Section 3 Clause 2 के बारे में बात करते हैं तो it provides bar from entering into anti-competitive agreements. मतलब इस तरह के जो एग्रीमेंट जो सेक्शन 3 क्लोज 1 के तहत किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बार डाला जा रहा है, उनके ऊपर उनको ऐसे एग्रीमेंट्स को करने पर रोक लगाई जा रही है सेक्शन 3 क्लोज 2 के तहत। तो यहाँ पे सेक्शन 3 क्लोज 2 कहता है कि जो 3 क्लोज 1 के अंदर जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाले हैं, तो ऐसे जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो सबके सब वाइड होंगे, वो नहीं करे जाएंगे, वैलिड नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा गोयल. As I have started with the series on the Competition Act, and in this series I have discussed introductory portion as well as definitions of certain provisions relating to the Competition Act. Today in this video I will discuss with certain important provisions relating to the Competition Act which is important for the examination point of view. That is anti-competition agreement. तो what are the anti-competitive agreements? यदि हम anti-competitive agreements की बात करते हैं तो these are the agreements which prevents any enterprise or association from entering into any agreements which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on the competition in India. While doing business in India, parties are prohibited from executing anti-competitive agreements. However, the Competition Act 2002 recognizes intellectual property rights and to facilitate their protection, and this act permits reasonable restrictions imposed by the owners. This means anti-competitive agreement is an agreement having adverse effect, appreciable adverse effect on the competition, and one of the objectives of this Competition Act is to prevent the adverse effect on the competition. And the Competition Commission of India, this means if we talk about the section 3 clause 1, section 3 clause 1 says that no enterprise, association, or person shall enter into any agreement in respect of product, supply, distribution, storage, acquisition, or control of goods or the provisions of service which causes or likely to cause appreciable adverse effect on the competition. If we talk about the section 3 clause 2, that is dealing with the anti-competitive agreements within the meaning of section 3 clause 1, and it says that such an anti-competitive agreements which are defined under section 3 clause 1 will be wide, shall be wide. ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो सबके सब वाइड होंगे. And provision of the agreements having appreciable adverse effect on the competition, comparative study, that is provided under section 3 clause 3 and 3 clause 4. Section 3 clause 3 of the Competition Act embodies the Percy rule as evidentiary standard. This means section 3 clause 3 provides that an agreement would have appreciable adverse effect on the competition if there is practice that is carried on or a decision in that which has been taken between any of the parties, including a cartel, engaged in identical or similar trade of the goods or the provisions of the services that can either जो क्या कर सकते हैं directly or indirectly determine the purchase or the sale price. Second one is limit or control the production, supply, market, technical development, and investment and the provisions of the services. And the third one is
shares the market and the source of production or provisions of the services by way of allocation of the geographical area of the market or the types of goods or services and or number of customers in the market or any other similar provisions. And the last one is directly or indirectly results in bid rigging or the collective bidding. तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 3 क्लोज 3 जो है इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट को करने से रोकता है जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालते हैं। और ऐसे कौन से एग्रीमेंट होंगे जो इस तरह के माने जाएंगे, इसके बारे में सेक्शन 3 क्लोज 3 डिफाइन करता है। सेक्शन 3 क्लोज 3 क्या कह रहा है कि ऐसे कोई भी अनुबंध जो कहीं ना कहीं ऐसे उद्यम या उद्यमों के संगम द्वारा या व्यक्ति या व्यक्तियों के संगमों के बीच में या किसी व्यक्ति या उद्यमों के बीच में किया गया हो, तो या फिर ऐसा कोई करार किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम जिसमें उत्पादक संघ भी शामिल है जो समरूप माल के व्यापार और सेवाओं की व्यवस्था के रूप में लगे हुए हैं द्वारा किया जाता है। और वो उसके अंदर क्या शामिल होना चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय किया जाना, विक्रय की कीमतों को अवधारित करता है। यदि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्रय या विक्रय की जो कीमतें हैं यदि उसको अवधारित करता हो तो वो एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट वाला माना जाएगा। सेकंड वन इज उत्पादन प्राय, बाजार, तकनीकी विकास या विनिधान या सेवाओं की व्यवस्था की परिसीमित करता है या नियंत्रित करता है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट वाले माने जाएंगे। थर्ड वन इज बाजार के भौगोलिक क्षेत्र, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार या बाजार में ग्राहकों की संख्या या किसी अन्य प्रकार के तरीके से आवंटन के जरिए बाजार या उत्पादन के स्रोत या सेवाओं के प्रावधान शेयर करता है। एंड द लास्ट वन इज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली में हेराफेरी या कपटपूर्ण बोली के परिणाम देता है। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, दीज वर कंसिडर्ड एज द एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। ये ऐसे एग्रीमेंट समझ जाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालते हैं। तो दीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 3 क्लोज 1 के अंदर तो क्या कहा गया कि एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट वाले जो कंपटीशन एग्रीमेंट्स हैं वो कौन से माने जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं जो सेक्शन 3 क्लोज 2 है वो ये कहता है कि ये इस तरह के जो एग्रीमेंट है जो सेक्शन 3 क्लोज 1 के तहत किए जा रहे हैं वो सबके सब वाइड होंगे। और सेक्शन 3 क्लोज 3 ने क्या कहा कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट है दैट विल हैव द एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। कौन से ऐसे एग्रीमेंट होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, विच आर हैविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज और द सेल प्राइस। सेकंड वन मैंने आपको बताया जो कहीं ना कहीं लिमिट कंट्रोल प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, या टेक्निकल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, या प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है, एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट माने जाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया शेयर्स द मार्केट और द सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन और द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस और द एलोकेशन ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द मार्केट और द टाइप्स ऑफ गुड्स ऑफ द सर्विसेज और द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। तो कहीं ना कहीं वो उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी सारे के सारे क्या है, एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट वाले माने जाएंगे। और लास्ट वन मैंने आपको बताया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बोली में हेरा फेरी की जा रही है, रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग। बिडिंग मतलब बोली में हेरा फेरी करना, और कॉलेज बिडिंग मीन्स कपटपूर्ण बोली की जा रही है वहां पर। यदि इस तरह के परिणाम वहां पर नजर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, दे विल कंसिडर दैट agreements that is having appreciable adverse effect on the competition and such type of agreements will be wide। वो जो एग्रीमेंट होंगे वो सबके सब वाइड माने जाएंगे अंडर सेक्शन 3 क्लोज 2 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द बिड रिगिंग, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड यूज करा बिड रिगिंग, ये बिड रिगिंग होती क्या है, किसे कहते हैं बिड रिगिंग। इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड बिड रिगिंग, जैसे मैंने आपको बताया है बिडिंग की यदि हम बात करते हैं तो बिडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा बोली में हेरा फेरी की जा रही है यहाँ पर, तो बोली में हेरा फेरी किसे कहोगे आप। बिड रिगिंग का मतलब होता है कि बोली में हेरा फेरी से अभिप्राय होता है कि उद्यम या सामान के उत्पादन या वस्तुओं के व्यापार या सेवाओं के प्रावधान में लगे व्यक्तियों के बीच में या किसी समझौते से जो बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने या घटाने या बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। तो इस तरह की जो बोली जो की जा रही है वो सब कहलाती है बिड रिगिंग। बोली में हेरा फेरी कर, हम ये कहेंगे कि वहाँ पे बोली में हेरा फेरी की गई है। तो बोली में हेरा फेरी के लिए कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, तो बोली में हेरा फेरी का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोली में हेरा फेरी का मतलब क्या बताया कि यदि कहीं भी मतलब जो बोली लगाई जा रही है उसके जरिए, बोली के जरिए
मतलब उद्यम का जो उद्यमी का जो सामान है या उस सामान के उत्पादन जो किया जा रहा है, वस्तु का जो व्यापार किया जा रहा है, ये सेवाओं के लिए जो प्रावधान किया जा रहा है, उनके बीच में जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं, ये यदि उनके बीच में जो बोली की जा रही है उसमें प्रतिस्पर्धा को कम करने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, या उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे बिड रिगिंग हुई है, बोली में हेरा फेरी हुई है। तो वी कैन डिफाइन दिस टर्म, हम इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो दिस में बिड रिगिंग इज ए प्रैक्टिस इज इंटेंडेड टू अनेबल द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द मोस्ट फेवरेबल टर्म एंड द कंडीशंस, invitation of the bids in resorted to both by government and the private bodies, but its objective is of securing the most favorable price, and the condition may be neglected the prospective bidders। तो वहाँ पे आप ये कहेंगे भाई सीधी बात है कि वहाँ पे बोली में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एक फेयर बोली की जानी चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड वेज इन विच कॉलेज बिडिंग या बिड रिगिंग में अकरार, कौन कौन से ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे बिडिंग है वो देखी जा सकती है। दिस में एग्रीमेंट टू सबमिट द आइडेंटिकल बिड्स। Second one is agreement as to who shall submit the lowest bid, and the agreement for the submission of cover bids या voluntary bids जिसे हम कह देते हैं। Third one is agreement not to bid against each other. Fourth one is agreement on common norms to calculate the price or the terms of bids. Fourth one is agreement on common norms to calculate the prices or the terms of bids. Fifth one is agreement to squeeze out certain bidders, and the next one is agreement designing bid winners in advance, rotational basis। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जब यहाँ पे हो रही है, हम ये कहेंगे कि वहाँ पे बिड रिगिंग की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिड रिगिंग का मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे फेयर बोली नहीं की जा रही है। तो एग्रीमेंट एट डिफरेंट स्टेज। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज द सेक्शन 4, दैट इज डीलिंग विद द एग्रीमेंट ऑफ एट डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन 3 कंप्लीट किया है, तो सेक्शन 3 को आपने शॉर्ट में याद रखना है कि सेक्शन 3 की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन 3 जो है वो कहीं ना कहीं एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेगा, और ये बताएगा कि कौन से एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट डालने वाले होंगे, और इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे वो पूरी तरह से वाइड होंगे। सेक्शन 3 क्लोज 2 ने बता दिया, और सेक्शन 3 क्लोज 3 ने ये बताया कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो उसके लिए इसने बिड रिगिंग का भी बताया कि जैसे बोली में हेरा फेरी हो रही है, फिर अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परचेज या सेल प्राइस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सप्लाई। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो सेक्शन 3 क्लोज 4 जो है दैट इज डिफाइनिंग सर्टेन वर्टिकल एग्रीमेंट्स। सेक्शन 3 क्लोज 4 जो है वो कुछ वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात करता है। तो वर्टिकल एग्रीमेंट्स किसे कहते हैं? वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन द एंटरप्राइजेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन चेन, लाइक अरेंजमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड ए डिस्टिंक्ट distributor, whether the vertical agreement is causing appreciable adverse effect on the competition is determined by the rule of reason. When the rule of reason is employed, both positive as well as negative impact the competition is analyzed to determine whether the agreement is in contravention of the section 3 clause 4. Read with section 3 clause 1. फॉर दिस देर आर सर्टेन असेंशियल एग्रीमेंट। यहाँ पे कुछ असेंशियल एग्रीमेंट देखे जाएंगे, कुछ असेंशियल कंडीशन देखी जाएगी, जहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये सेक्शन 3 क्लोज के तहत वर्टिकल एग्रीमेंट उसमें आएगा या नहीं आएगा। यदि हम वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि विभिन्न बाजारों में ये जो उत्पादन होते हैं या आपूर्ति वितरण होते हैं, भंडारण होते हैं, या वस्तुओं का व्यापार या व्यापार के संबंध में विभिन्न बाजारों में उत्पादन की जो श्रृंखला के स्तर पर विभिन्न चरणों पर उद्यम एवं व्यक्तियों के बीच जो समझौते किए जाते हैं, वे एक अमान्य समझौता होगा यदि वो भारत में प्रतिस्पर्धा पर एक प्रभावशाली प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो इसकी कंडीशन में आएंगे, इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन बताए गए। देयर आर द 5 एसेंशियल इंग्रीडियंट्स, 5 एसेंशियल इंग्रीडियंट्स बताए गए हैं जो सेक्शन 3 क्लोज 4 के तहत वर्टिकल एग्रीमेंट्स में शामिल होंगे। तो सबसे पहले आपको इसको याद रखना है कि टाई इन व्यवस्था जो होती है। सेकेंड वन इज अनन्य आपूर्ति समझौता। थर्ड वन इज अनन्य वितरण समझौता, या सौदा करने के ढंग से सौदा करने से इनकार करना, या फिर पुनः विक्रय मूल्य रखरखाव। ये सारे के सारे वो एग्रीमेंट है जो कहीं ना कहीं इसकी सेक्शन 3 क्लोज 4 के तहत वर्टिकल एग्रीमेंट्स माने जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल एग्रीमेंट्स के लिए आपने
5 कंडीशन याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स के लिए 5 कंडीशन याद रखनी जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की कंडीशन में शामिल होंगे। टू बी एग्रीमेंट मस्ट बी ए वर्टिकल एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइजेज और द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे उसके लिए 5 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमोंग द एंटरप्राइजेस और द पर्सन्स। यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एंटरप्राइजेज या पर्सन्स के बीच में हो रहा है। थर्ड सेकंड वन इज द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट मस्ट बी एट द स्टेज मस्ट बी एट डिफरेंट स्टेजेस और द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। वो अलग अलग स्टेजेस में होने चाहिए और वहाँ पे या फिर वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के उसमें अलग अलग स्टेजेस में होने चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल, प्राइस या ट्रेड ऑफ गुड्स या प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज इसमें होने चाहिए। थर्ड वन इज द एग्रीइंग पार्टीज मस्ट बी इन डिफरेंट मार्केट। जो एग्रीइंग पार्टीज है वो अलग अलग मार्केट से संबंधित होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज एग्रीइंग agreement should cause or likely to cause appreciable adverse effect on the competition. And the fifth one is agreement should be of one of the following. इनमें से यदि कोई भी एग्रीमेंट है वो इसकी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की कंडीशन में माना जाएगा। वो सॉरी वर्टिकल एग्रीमेंट्स की उसमें कैटेगरी में आएगा। वर्टिकल एग्रीमेंट्स में कौन कौन से एग्रीमेंट शामिल होंगे? टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, फिर थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, फोर्थ वन इज रिफ्यूजल टू डील, and the fifth one is resale price maintenance. These are the certain agreements which are coming under the category of vertical agreements. ये सारे के सारे वो एग्रीमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में शामिल होंगे। तो कौन कौन से बताए गए? टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट्स, refusal to sale, refusal to deal, and resale price maintenance. These shall be an agreement in the contravention of the provisions of section 3 clause 1 of if such agreement causes or likely to cause appreciable adverse effect on the competition, so they will consider as vertical agreements under section 3 clause 4. अब इन्हीं टर्म्स को आपको अलग अलग डिफाइन करना है। फर्स्टली वी डिस्कस विद द टाई इन अरेंजमेंट। इफ वी टॉक अबाउट द टाई इन अरेंजमेंट, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेज ऑफ गुड्स। टाई इन अरेंजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा एग्रीमेंट दैट रिक्वायर्स ए परचेज ऑफ गुड्स एज ए कंडीशन ऑफ सच ए परचेज टू द परचेज सम अदर गुड्स। कई बार आपने देखा होगा कि एक जब कोई चीज़ लेते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि दूसरी जो वस्तु है वो आपको साथ में खरीदनी होगी। तो क्या कहेंगे कि यदि कोई ऐसा समझौता है जिसके अंदर सामान के खरीदार की आवश्यकता, जिसको सामान के खरीदार को मतलब सामान खरीदने की आवश्यकता है, तो वहाँ भी ऐसी खरीद की शर्त के रूप में कुछ अन्य सामान खरीदने के लिए यदि आप रख देते हो उसे कहते हैं टाई इन अरेंजमेंट। तो टाई इन अरेंजमेंट जहाँ पे होगा तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का वर्टिकल एग्रीमेंट माना जाता है। सेकंड वन इज एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द, कैसे कहोगे, द परचेज इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड। तो दिस मीन्स इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम एक्वायरिंग, रेस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or the other person. If we talk about the term exclusive in agreement, इसको हम कहते हैं अनन्य आपूर्ति समझौता। जो ऐसे समझौते होते हैं जो विक्रय या अन्य व्यक्ति के अलावा किसी भी सामान में प्राप्ति या अन्यथा व्यवहार करने से अपने व्यापार के दौरान खरीदार को किसी भी तरह से सीमित करता है। वहाँ पे उसको एक लिमिट में लाया जा रहा है। तो इस तरह के जो समझौते होंगे वो कहलाएंगे आपके एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। ये एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट्स की कंडीशन में आएंगे, कैटेगरी में शामिल होंगे। एंड द थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया है, इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, विदहोल्ड और आउटपुट और सप्लाई ऑफ गुड्स और एलोकेट एनी एरिया और द मार्केट फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ द गुड्स, requiring a distributor not to sell the goods of the manufacturer beyond the prescribed territory is a good example of the exclusive distributive agreement. तो जैसा मैंने आपको बताया exclusive distribution agreement includes any agreement to limit, restrict or withhold the output or the supply of any goods or the allocate of any area or the market for the disposal of sale of the goods. This अनन्य वितरण समझौता जो किसी भी सामान को आपूर्ति को सीमित करने, आउटपुट या आपूर्ति को सीमित करने, प्रतिबंधित करने या रोकने या माल की बिक्री या बिक्री के क्षेत्र किसी भी प्रकार के क्षेत्र या बाजार को आवंटित करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनन्य वितरण समझौता।
एंड द फोर्थ वन इज सौदा करने से इनकार, जिसे हम कहते हैं रेफ्यूजल टू डील। रेफ्यूजल टू डील किसे आप कहेंगे? इफ यू टॉक अबाउट द टर्म रेफ्यूजल टू डील, जैसे मैंने आपसे बताया है कि रेफ्यूजल टू डील कहा जाएगा कि इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स और इज लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड ऑफ द पर्सन और द clauses of the person to whom goods are sold or from whom goods are brought। एक इन्होंने क्या करा कि पहले से ही यहाँ पर सौदा मतलब करने से इनकार कर दिया हो। किस आधार पर करा? इसमें वो शामिल है कि कोई भी समझौता या प्रतिबंध लगाया जा रहा है या किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति या वर्गों को माल बेचने या जिसके द्वारा माल खरीदा जाता है पर प्रतिबंध किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक लिमिट कर दिया कि आप अपना जो माल बेचेंगे वो इसी व्यक्ति को बेचेंगे, मतलब वहाँ पे अपना माल नहीं बेचेंगे। तो ऐसे जो सौदे किए जाते हैं कहीं ना कहीं वो भी गलत है, वो कहीं ना कहीं जो व्यापार होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। तो इसे तो सौदा करने से इनकार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोई भी ऐसा जो समझौता होगा जो इस तरह का प्रतिबंध लगाएगा जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों या वर्गों या उसको माल बेचने या उसके द्वारा माल खरीदने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए, तो वो जो समझौते होंगे वो रेफ्यूजल टू डील की कैटेगरी में शामिल होंगे। एंड द लास्ट वन इज पुनः विक्रय मूल्य रख रखाव, जिसे हम कहते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मीन्स इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द कंडीशन दैट द प्राइस इज टू बी चेंज्ड, प्राइस इज टू बी चार्ज्ड ऑन रीसेल बाय द परचेजर shall be the price is stimulated by the seller unless it is clearly stated that the price is lower than those prices may be charged. If we talk about the prices, resale price maintenance, it includes any agreement to sell the goods on condition that the price is to be charged on the resale by the purchaser and shall be the price is stipulated by the seller unless it is clearly stated that the price is lower than those prices may be charged। जैसे मैंने आपसे बताया कि जब हम उन्हें विक्रय मूल्य रख रखाव के बारे में, तो इसके अंदर वो सब शामिल हैं जिसमें कोई भी समझौता जिसमें एक ऐसी शर्त पर सामान बेचा जाता है या खरीदार द्वारा पुनः विक्रय पर कीमतों पर शुल्क लगाए जाने वाली कीमत विक्रेता द्वारा निर्धारित कीमत होगी, जब तक कि वो स्पष्ट नहीं किया जाता कि कीमत कम या उससे कीमत या उन कीमतों से भी जिनका शुल्क लिया जा सकता है। तो पुनः जो मूल्य रख रखाव है इसके अंदर वो सब समझौते शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं एक जिसपे एक शर्त लगाई जा रही है और उसी शर्त पर उसको बेचा जा रहा है, या कि खरीदार द्वारा पुनः विक्रय पर कीमतों का शुल्क लगाए जाने वाली कीमत, मतलब वहाँ पे जो यदि वो पुनः विक्रय करेगा तो उसके ऊपर इतना शुल्क लगाया जाएगा। उस कीमत को निर्धारित मतलब वहाँ पे ऐसे ही निर्धारित कर दी कि यदि वो द्वारा ऐसा करेगा तो उससे कम कीमत पे भी उसे बेचा जा सकता है, उससे कम कीमत पे भी उसे चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह के जो समझौते होते हैं वो सबके सब किस कैटेगरी में शामिल होंगे? दे विल बी कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 3 क्लोज 4 वर्टिकल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि हम तो उससे कम कीमत पे भी उसे बेचा जा सकता है, उससे कम कीमत पे भी उसे चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह के जो समझौते होते हैं वो सबके सब किस कैटेगरी में शामिल होंगे? दे विल बी कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 3 क्लोज 4 वर्टिकल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि हम वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वर्टिकल एग्रीमेंट जो है दीज आर इंक्लूडिंग 5 पार्ट्स। टाइप्स ऑफ वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज 4, जैसे मैंने आपसे बताया है। तो 3 क्लोज 4 के तहत 5 तरह के वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात की गई है। नंबर 1 टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट, refuse to deal, and the last one is resale price maintenance। तो these are the एग्रीमेंट्स विच आर नोन एज वर्टिकल एग्रीमेंट्स। और ये जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं मना किए जा रहे हैं कि आपको ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने हैं जो कहीं ना कहीं एप्लीसेबल एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कंपटीशन पे। सेक्शन 4 दिस कंपटीशन एक्ट डील्स विद ऑल द एग्रीमेंट्स जो कहीं ना कहीं आपकी डोमिनेंट पोजीशन को आप अब्यूज करने के लिए कर रहे हैं। मींस प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग निश्चित किया गया है। इस तरह की जो प्रमुख स्थिति है उसका जो दुरुपयोग है, यदि आप उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं तो उसको निश्चित कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और जो प्रमुख स्थिति आपकी, इसका मतलब ये होता है कि भारत में संबंधित जितने भी मार्केट होते हैं संगत बाजार में किसी उद्यम को प्राप्त शक्तिशाली स्थिति, यदि कोई उद्यम ऐसा है जिसको शक्तिशाली उसने अपना को शक्तिशाली बना रखा है और वहाँ पे जो इस प्रकार की जो स्थिति है उसके अंदर संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा ताकतों से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकती है। वहाँ पे क्या होगी, वो प्रतिस्पर्धा को चलने ही नहीं देगी। जब वो ऐसी बड़ी ताकत होगी तो वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, वहाँ पे वो कंपटीशन चल नहीं पाएगा, वो अपनी मनमानी करेगी और अपने प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या संबंधित बाजारों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकती है। वो प्रमुख स्थिति कहलाएगी। ऐसे करने में क्या आ जाएगी, वो पार्टी जब वो प्रमुख स्थिति में है। अतः किसी उद्यम द्वारा प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग में निम्न व्यवहार को सम्मिलित किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे व्यवहार हो सकते हैं? जहाँ पे माल या सेवाओं की खरीदार या बिक्री पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें लगाई जा रही हैं।
सेकंड वन इज उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल माल या सेवाओं से संबंधित तकनीकी या विज्ञान के विकास में बाधा पहुंचाना उसका मेन लक्ष्य है। एंड द थर्ड वन इज बाजार तक पहुंच को रोकने वाले व्यवहार अपनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया है कि सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट दैट प्रोहिबिट्स एन एंटरप्राइज और द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन मीन position of the strength enjoyed by the enterprise or the group of enterprise in the relevant market in India, which enables to operate the independence of the competitive forces prevailing in the relevant market or the effect of competition or the consumers or the relevant market in its favor. Section 4 clause 2 says that there shall be abuse of dominant position if the enterprises or the group of enterprises dominant position का abuse करा हुआ कब माना जाएगा जब enterprise या group ऐसा कर रहे हैं। कोई क्या बताया मैंने आपको directly or indirectly imposes unfair or discriminatory condition in the purchase or the sale of goods or services। तो वहां पे क्या कर रहे हो माल या विक्रय जो सेवाएं ले रहे हैं उनकी खरीद पर या बिक्री पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें लगा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया सेकंड वन इज लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस और द मार्केट देयरफॉर और द टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू द गुड्स और द सर्विसेज और द प्रेजुडिस टू द कंज्यूमर। भी उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल मतलब जहां पे उपभोक्ता के हितों का प्रभाव पड़ रहा है उनके हितों के प्रतिकूल माल या सेवाओं से संबंधित तकनीकी या विज्ञान के विकास में बाधा डालते हैं। यदि विकास हो जाएगा तो हमारी मनमानी नहीं चल पाएगी, वो उसमें बाधा डाल देंगे तकनीकी विकास में। थर्ड वन इज indulge in practice or the practices resulting in denial of market access in any other market manner मीन बाजार तक पहुंच को रोकने वाले व्यवहार अपनाते हैं कि वहां पे वो दूसरे बाजार तक वो पहुंच ना बना सके। एंड द फोर्थ वन इज मेक्स कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज और द सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन व्हिच बाय देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूसेज हैव नो कनेक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ द कनेक्ट सच कॉन्ट्रैक्ट्स। कि वहां पे क्या हो रहा है कि जो संविदा निष्पादन है उस पर अन्य पक्षकारों द्वारा स्वीकृत किए जाने की शर्तें लगाना जिनका ऐसी संविधाओं के विषय में कोई भी संबंध ना हो, ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं कि जिनका उससे कोई संबंध नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि उनकी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर इनटू और प्रोटेक्ट द रेलेवेंट मार्केट अदर रेलेवेंट मार्केट। संबंधित बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति को दूसरे बाजार में प्रवेश करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जब दूसरे बाजार तक उसकी पहुंच नहीं बननी चाहिए। तो ये जो अधिनियम है वो कारोबारी संगठनों के विभिन्न रूपों को विनियमित करता है और उनके निर्माण पर रोक नहीं लगाता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या उद्यम अधिग्रहण विलयन या सम्मालन के रूप में ऐसे संगठन नहीं बनाएगा जिससे संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर गलत असर पड़ता हो, या फिर ऐसे संगठन अमान्य हो जाएगा। यदि ऐसा जो संगठन है यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अमान्य होगा। और ये अधिनियम जो संगठनों को नहीं बल्कि उनके हानिकारक प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। वो ये नहीं कहते संगठन को ही रोकना है, हमें उनके हानिकारक जो प्रभाव है उनको भी होने से रोकना है। यदि कोई व्यक्ति आयोग के किसी आदेश या किसी शर्त या प्रतिबंध या इस अधिनियम के अधीन किसी भी दंड का भुगतान नहीं करता तो वो सिविल जो कारावास है उसमें दंड का भागीदारी होगा। यदि उनकी शर्तों को नहीं मानता तो कहीं ना कहीं उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है, जेल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया सेक्शन 4 कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को होने से रोकना, कि अब्यूज कैसे उसको रोका जा सकता है, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने से कैसे रोक सकते हैं आप। तो इससे संबंधित आप देखेंगे सेक्शन 4 इसी के साथ डील कर रहा था, इसके अंदर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोका गया। तो जब